Speaker Madam, I beg to move for leave to introduce the Railway Safety and Security Bill 2019. Honorable members, now the question is that leave be granted to introduce Railway Safety and Security Bill 2019. Those who are in favor will please say aye. Aye. Those who are against it will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The leave is granted. Honorable Minister of Railways, please. Madam, I introduce the bill. Honorable members, now we'll take up consideration for the NDP Reform Bill 2019. Honorable Acharya Minister, please. Honorable Speaker Madam, I beg to move that No Detention Policy Reform Bill 2019 be taken into consideration. I beg to move that the bill to provide more effective prevention of NDP and its qualifications and for matters connected therewith be taken into consideration. Honorable Speaker Madam, as the House is aware that this Act was introduced on 2009 to provide free and compulsory education to every child below the age of 14 years. And under the current provision of NDP, no child can be detained till class 8 and they are promoted to next grade. Because of this, our learning outcomes are going down and our education system is currently in very bad shape due to no detention policy. Honorable Madam, since introducing the policy, although dropout rates have reduced ironically, but there has been a drop in the overall gross enrollment of students. Enrollment for girls' child, however, has shown some improvement, but these matters may appear superficial unless reviewed at depth. So I request you to consider the bill from the House because the fact remains that today's children are tomorrow's future and it is in our interest that we fix the issue before it gets too late. Honorable Madam, I would like to tell the House some of the salient features of the bill. These are as under. First, learning outcome class-wise and subject-wise shall be fixed to ensure minimum level of learning. Second, child can be detained in class 5th or 8th if learning outcomes are not achieved. Third, one chance of improvement shall be given just after the main exam within a month. Fourth, baseline tests shall be conducted periodically to a certain achievement with targeted learning outcome. And fifth, counselors shall be posted, special educators shall be posted, so they may help the students, those who are having difficulty in learning. I once again request you to consider the bill from the House. Thank you, Madam. Honorable members, the question is that the NDP Reform Bill for a strengthening school education system be taken into consideration. Shri Dipesh, please. Honorable Speaker Madam, I rise to support this bill. Madam, right to education is one of the best acts our government has introduced. It provided an opportunity for the children who can't afford to study. The major features under this act are: first, it provides us power at the international level as literacy rate is the measure of a country's human resources. Second, it makes every child literate. Third, it provides them elementary education so that no one can fool them. Madam, I don't think that there is any disadvantage under this act except the learning outcomes of the students after elementary education are not satisfactory as they are not having quality education. Madam, this is something which needs urgent attention and little modification. A little modification will ensure better future of our entire nation. Thank you, Madam. Honorable Leader of Opposition, Shri Siraj, please. धन्यवाद महोदय। मैं एनडीपी बिल में हो रहे संशोधन के विपक्ष में अपनी राय देने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी मंत्री जी स्कूल तो गई होंगी। स्पीकर मैडम, हमारी मंत्री जी स्कूल गई होंगी तो वे विद्यार्थियों के फेल होने का दर्द भी समझती होंगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी फेल होती थी, वो तो हमें पता है। आप तो हार्वर्ड वाली हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम तो हार्डवर्क वाले ही हैं। शायद इसीलिए हम ये बेहतर समझते हैं कि जब एक बच्चा फेल होता है तो केवल एक विद्यार्थी ही फेल नहीं होता, उसके साथ एक परिवार भी फेल होता है और शायद एक समाज भी।
और न ये दाग सिर्फ एक को हतोत्साहित करता है बल्कि उसके भविष्य में भी प्रश्न चिन्ह लगा देता है। अरे कई बार तो बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं और साथ का शिकार हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन से बस यही पूछना चाहता हूं कि क्या शिक्षा हमारी जिंदगी से भी बड़ी हो गई है? अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बता दूं कि शिक्षा हमारे जीवन का केवल और केवल एक अंग मात्र ही है, पूरा जीवन नहीं। क्या माननीय मंत्री जी ने कभी ऐसा सुना है कि किसी व्यक्ति ने अपनी उंगलियां हाथ कट जाने पर आत्महत्या कर ली हो? नहीं, कभी नहीं। इसीलिए अध्यक्ष महोदया, हमने कई वर्षों की रिसर्च के बाद बच्चों के कोमल मन से तनाव और कोमल कंधों से सिर्फ पास फेल होने का भारी कम किया है। उन्हें फिर से उम्मीदों के भार से मत रौंद दिए। क्या माननीय मंत्री जी के पास कोई ऐसा सर्वे है जिससे यह साबित हो कि बच्चे फेल होने के बाद और भी ज्यादा पढ़ने लगते हैं? अरे नहीं, बल्कि वे उस अंधकार में फंसकर न जाने कैसी कैसी राह पर निकल जाते हैं। क्या हम अपने जमी के तारों के लिए ऐसा भविष्य चाहते हैं? अध्यक्ष महोदया, अंत में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बस यही अनुरोध करना चाहूंगा कि वे मेरी कही हुई बातों पर एक बार गौर जरूर फरमाएंगी ताकि वे अपने निर्णय पर एक बार पुनर्विचार कर सके। धन्यवाद महोदया। मिस सोनालिका प्लीज। धन्यवाद महोदया। महोदया, अगर पुरानी नीतियों से साक्षरता का स्तर 62.75 से, जी हाँ महोदया, 62.75 से 75% हुआ है तो माननीय मंत्री महोदय मुझे ये बताने का कष्ट करें कि अब इस एक्ट में संशोधन लाने की क्या आवश्यकता पड़ रही है, उसमें आवश्यक सुधार लाएं, अन्यथा मैं इस बदलाव का पुरजोर तरीके से विरोध करती हूँ। धन्यवाद महोदया। मिस संस्कृति प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री से ये जानना चाहती हूँ कि एनडीपी एक्ट में संशोधन के बाद भी जब 8वीं तक का कोई बच्चा फेल हो जाएगा तो सरकार उसके लिए भविष्य में क्या करेगी? उसे आगे की कक्षा में स्थानांतरित किया जाएगा या फिर उसे दोबारा उसी कक्षा में पढ़ना पड़ेगा? धन्यवाद महोदया। श्री आकाश प्लीज। Honorable Speaker, Madam, by scrapping the no detention policy, the government is delivering a body blow to the young minds. The change in the policy means that the government is blaming the students for their failure in their classes. But Honorable Ma'am, will the minister tell to the House that did you provide the right resource for a child to learn? Did you do sufficient enough in teachers training, pedagogy, textbooks and other learning materials to make education a joyful exercise? Was a national employment of teachers done and a specified teachers ratio maintained in the school? Honorable Minister, I know the answer is a big no. I am repeating it for you, it is a big no. So, because you failed in implementation, so you decided to fail the students. Please show some mercy on innocent minds. Thank you, Madam. Honorable Minister of Skill Development, please. धन्यवाद महोदया। महोदया, तुलसीदास की एक बड़ी चर्चित चौपाई है कि भय भिन्न होए न प्रीत, यानी भय भिन्न प्रीत नहीं हो सकती। कक्षा 8वीं तक के बच्चे हमारे देश का भविष्य, हमारे देश की ताकत और हमारी देश की युवा शक्ति हैं। और विपक्षी दल क्या चाहता है? क्या चाहता है विपक्षी दल? कि हम उन्हें पका पकाया खाने की आदत डाल दें। अरे किसी कवि ने लिखा था कि जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। जिंदगी प्रेम गीत नहीं है। अगर हमारे बच्चे छोटे मोटे इम्तिहानों को अपने बलबूते पर पास नहीं करेंगे तो जीवन की समस्याएं और देश की समस्याओं का निवारण कैसे करेंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आता महोदया। ठीक है ना, ठीक है, एक पल को मैं मान लेता हूं कि एनडीपी में कोई संशोधन नहीं करना चाहिए। एनडीपी एक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अव्वल है। तुम्हारे 10वीं और 12वीं वाले बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? वो बेचारे क्यों पास होने के लिए मारे मारे फिरे? उनसे कौन सी हमारी जाति दुश्मनी है? महोदया, मैं तो कहता हूँ सिर्फ 10वीं और 12वीं में नहीं, उच्च शिक्षा में भी हमें एनडीपी एक्ट को लागू कर देना चाहिए। सारे बच्चों को हम बिना पढ़े ही पास कर देते हैं, देश का भविष्य जाए गर्त में। पर महोदया, जिस डर से, ध्यान से सुनिएगा, जिस डर से हमने एनडीपी एक्ट को 10वीं और 12वीं में नहीं लागू किया, मैं सारी सदन का ध्यान उसी डर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं महोदया, उसी डर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। खैर, इसी संदर्भ में एक कविता पढ़ी थी, काफ़ी अच्छी कविता थी, गौर फरमाइएगा कि अब तो 4-5 पास हुआ करते हैं, अब तो 4-5 पास हुआ करते हैं, तब जाके 60-70% हुआ करते हैं। फिर भी कभी उदास नहीं हुए, फिर भी कभी उदास नहीं हुए, क्योंकि मेहनत से कभी पास नहीं हुए। 9वीं के बाद का आलम यह है कि बच्चे ने कई ट्यूशनें ली। 9वीं के बाद का आलम है बच्चों ने कई ट्यूशनें ली, पर उनकी सुई 10वीं से 11वीं में ना बढ़ी।
फिर भी बच्चे बिल्कुल नहीं घबराते हैं, एक ही कक्षा में कई कई वर्ष लगाते हैं। महोदय, अब तो सिलेबस एक्सपायर हो जाया करते हैं, बच्चे वहीं पढ़े रहते हैं, मास्टर रिटायर हो जाया करते हैं। महोदय, हमारी शिक्षा व्यवस्था का हाल बद से भी बदतर होता जा रहा है। संस्कृत का एक श्लोक है, काकचेष्टा बको ध्यानम, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वर्ण निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। इतनी मेहनतों के बाद, इतनी मिन्नतों के बाद एक विद्यार्थी तैयार होता है, और मैं चाहता हूं कि एनडीपी संशोधन में विपक्षी दल भी हमारा समर्थन करे। धन्यवाद। Honorable HRD Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य जी को उनकी चिंता से मुक्त कर देना चाहूंगी कि मैं भी स्कूल जा चुकी हूँ और फेल होने वाले छात्रों का दर्द भी बखूबी समझती हूँ। और माननीय सांसद जी, जहाँ तक बात रही हार्वर्ड जाने की, तो हार्वर्ड भी बिन हार्ड वर्क के नहीं पहुँचा जा सकता। माननीय महोदया, अब बात एनडीपी बिल में संशोधन के संबंध में। पीसा, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसमें लगभग 5,40,000 छात्रों ने 74 देशों से हिस्सा लिया था, जिसमें हमारी रैंकिंग 72वीं थी, जो कि संतोषजनक नहीं थी। परंतु फिर भी महोदया, हमने हार नहीं मानी एवं 2021 में होने वाले पुनः पीसा प्रशिक्षण में अपना उत्कृष्ट स्थान सुनिश्चित करने की दिशा में हम इस बिल में संशोधन प्रस्तावित कर रहे हैं। माननीय महोदया, प्रथम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 5वीं के 78% बच्चे कक्षा 4वीं की और 50% बच्चे कक्षा 3री की पुस्तक पढ़ने में असमर्थ हैं। और तो और महोदया, जब उन बच्चों से हमारे वर्तमान राजनीतिज्ञों के बारे में कुछ मामूली से सवाल किए गए तो वे उनका भी जवाब देने में असमर्थ थे। माननीय महोदया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम एक दिन सुबह उठे और बिल में संशोधन प्रस्तावित कर दिया। इसके लिए तमाम सर्वे किए गए, सुब्रमण्यम कमेटी बनाई गई, बच्चे, शिक्षक, अभिभावक, सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया। उसके बाद हम इस बिल में संशोधन प्रस्तावित कर रहे हैं। माननीय महोदया, सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा है कि एनडीपी से शिक्षा का स्तर और शिक्षण का स्तर दोनों गिरा है। केंद्रीय विद्यालय की स्लेट, कई राज्यों की बोर्ड्स परीक्षाओं ने यह साबित भी किया है कि एनडीपी से लर्निंग आउटकम्स निराशाजनक हैं। तो विपक्षी दल क्या चाहता है कि क्या आप भी हम हाथ में हाथ धरे बैठे रहे और अपनी शिक्षा व्यवस्था को रसातल में जाते हुए देखें? नहीं माननीय सदस्य महोदय, नहीं। अब हारेंगे तो सब हारेंगे, और आने वाली पीढ़ियां महोदया, आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। ऑनरेबल स्पीकर मैडम, आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ द कंसर्न। महोदया, हम इस बिल के सख्त खिलाफ हैं। ये बिल पास नहीं होना चाहिए। ये बिल पास नहीं होना। कृपया शांत हो जाएं। कृपया शांत हो जाएं। कृपया शांत हो जाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनिए। हाँ, कृपया शांत हो जाएं। अध्यक्ष महोदया, हम आरटीई एक्ट में संशोधन इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने संसदीय समिति में भारत के बड़े विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और प्राध्यापकों को आमंत्रित किया और इस विषय पर उनकी राय जानी। और महोदया, गहन विश्लेषण के बाद समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वाकई इस एक्ट में संशोधन की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदया, हम ये पहले भी कह रहे थे और हम ये आज भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार का लक्ष्य है शिक्षा के गुणवत्ता के स्तर को सुधारना, ना कि साक्षरता के स्तर को सुधारना। अध्यक्ष महोदया, इमारत बाहर से कितनी भी आलीशान क्यों ना हो, कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी नींव मजबूत नहीं रहती तो इमारत कभी भी धराशायी हो सकती है। और उसी प्रकार महोदया, उसी प्रकार अगर हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था की नींव ही कमजोर होगी तो इस देश का भविष्य क्या होगा, यह चिंता हमें सता रही है। हमारी सरकार महोदया, परम वैभवम ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम के सिद्धांत पर चलने वाली सरकार है, इदम राष्ट्राय इदम नमम के सिद्धांत पर चलने वाली सरकार है। और जब तक हम इस राष्ट्र के उद्देश्य को पूरा नहीं कर लेते तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे, विश्राम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से अपने विपक्षी साथियों से अनुरोध करता हूं कि वो इस बिल में हमारा समर्थन करें। धन्यवाद। Honorable HRD Minister, please. Honorable Madam, I hope I have clarified all the concerns of the respected members of the House in course of my speech. Honorable Prime Minister has already addressed the other parts of the bill. I need your support and cooperation in implementation of this measure. I request the House to please pass the bill. Thank you, Madam. Honorable members, now the question is that
the NDP Reform Bill 2019 be taken into consideration. Those who are in favor will please say aye. Aye. Those who are against it will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Now, clause by clause consideration. There is one amendment in clause 3 by Ms. Sanskruti. Ms. Sanskruti, are you moving it? No, madam. In view of reply given by the minister, I am not pressing my amendment. Thank you, ma'am. There is one more amendment in clause 5 by Shri Siraj. Shri Siraj, are you moving it? Honorable Madam, yes, I move the bill. Honorable members, now the question is that amendment in clause 5 be taken into consideration. Those who are in favor will please say aye. Those who are against it will please say no. No. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The motion is negated. Honorable members, now the question is that clause 2 to 10 stands part of the bill. Those who are in favor will please say aye. Aye. Those who are against it will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Honorable members, now the question is that clause first, the enacting formula and the title stands part of the bill. Those who are in favor will please say aye. Aye. Those who are against it will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Honorable HRD Minister, please. Honorable Madam, I move the bill be passed. Honorable members, motion move that the bill be passed. Those who are in favor will please say aye. Aye. Those who are against it will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Honorable members, now the House is adjourned. We'll meet again tomorrow at 11 a.m. sharp. I wish you a good day ahead.